Dear students, as we have discussed the amino acids, amino acids are the bifunctional compound having the one NH2 group and one OH group, and they are obtained by the hydrolysis of the proteins. Polypeptides are formed, then on polypeptides hydrolysis we get the amino acids. Amino acid has the both functional group NH2 group and the COH group. In the previous lecture we have discussed about the reaction of amino groups. Now today we are going to discuss the Duncan-West reaction. This will also takes place at the NH2 group. When the amino acid is heated with acetic anhydride in pyridine solution, it gives aceta-amido ketone. Acetic anhydride in pyridine, in which the NH2 group is acetylated and converted into NHCOCS3. Now we will take the reactions which are taking place on both the carbonyl group as well as in the amino groups. First is we are taking the heat action. When the alpha amino acids are heated, the two molecules of alpha amino acids are combined in such a way that hydrogen from the NH2 group and OH from the COH group and OH from the first amino acid and H from the second amino acid eliminates the two water molecule and giving you 2,5-diketopiperazine. So alpha amino acids on heating gives 2,5-diketopiperazine, that is the two molecules of a amino acid undergo condensation. But when beta amino acid is heated, it simply lose a ammonia molecule and it produce alpha beta unsaturated acid. When gamma and delta amino acids are heated, they undergo cyclization process of the same amino acid. The OH from the carboxylic group and H from the NH2 group of the same amino acid will lose a water molecule and giving the gamma butyrolactam. Similarly, the delta amino acid will form a 6-membered gamma butyrolactam. Next we are taking the methylation. If the glycine is treated with the 3 molecules of methyl iodide, it will form betaine. Betaine is trimethyl glycine, giving you the 3 HI forms. So NH3 will be methylated, it is betaine, it has some medicinal importance, it is used in the ointment for the skin treatment. Next we are taking the important topic, that is the Zwitter ion. As we have discussed that hydrogen from the carboxylic acid goes to the NH2 and forming the NH3 plus and COO minus. So amino group is basic in nature and COH group is acidic in nature, and they form an internal salt that is named as Zwitter ion. It is also named as ampholyte ion because positive charge is neutralized by the negative charge. It has 2 poles, so dipolar ion, ampholyte that is the neutral, and Zwitter ion or dipolar ion. Dipolar ion presence. The evidences for this, the aliphatic amines are carbonyl compounds are of low melting point and low boiling point. They are volatile compounds. Whereas the amino acids are non-volatile, crystalline solid. At high temperature, they melt with decomposition. So it differs from the properties of aliphatic amine. And secondly, they have the high dielectric constant value in the amino acids. Generally, the amines are not having the high dielectric value. The value of the dipole moment of amino acid is again too high. The value of acidity and basicity of amino acid is comparatively low. For example, acid dissociation constant for aliphatic carboxylic acid is nearly of the order of 10⁻⁻5 range, whereas that of the amines is of the order of 10⁻⁻10. Kb value for the aliphatic primary amine is of the order of 10⁻⁻12. तो ये जो डाइपोलर आयन है इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एलिफेटिक अमीन से नहीं मिलती या कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं मिलती। जैसा आपको बताया है कि एलिफेटिक अमीन्स के गलनांक कम होते हैं,
द्रवणांक भी कम होते हैं, जबकि अमीनो एसिड जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं और वो डिकम्पोज हो जाते हैं अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं पानी में नहीं घुलते, जबकि अमीनो एसिड पानी में घुलते हैं। इनके डायस्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू अमीनो एसिड की भी ज़्यादा होती है, और इनकी जो एसिडिटी और बेसिसिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें Ka की वैल्यू 10⁻⁻5 रेंज की होती है, जबकि अमीनो एसिड में ये 10⁻10 की होती है। इसी तरीके से प्राइमरी अमीन के अंदर ये वैल्यू 10⁻12 होती है, जबकि इसकी वैल्यू जो होती है उससे भी कम होती है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलते, जबकि पानी में घुल जाते हैं, जबकि एलिफेटिक अमीन जो होते हैं वो पानी में नहीं घुलते और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं। और इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को भी अगर हम देखें तो वहाँ पर फ्री NH2 ग्रुप जो है वो नहीं पाया जाता है, या फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो नहीं पाया जाता है। और अगर ज्विटर आयन को हम देखें तो ये NH3 पर पॉजिटिव चार्ज है, CO पर माइनस चार्ज है। CO पर माइनस चार्ज है तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा। NH3 पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन देगा। तो अगर हम यहाँ पर एक रिएक्शन देखें तो जिसमें NH3 जो प्लस है वो प्रोटॉन दे करके बना रहा है NH2 प्लस CH2COO माइनस H3 प्लस। ये ज्विटर आयन का एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। इसका मतलब जो इसमें एसिडिटी है वो NH2 ग्रुप के कारण है, CO माइनस के कारण नहीं है। इसी तरीके से हम अगर इसका बेसिक बिहेवियर देखें तो बेसिक बिहेवियर के अंदर प्रोटॉन का लेना बेसिक सिटी को बताता है। तो ज्विटर आयन में COO माइनस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और COOH में बदलता है। सो बिहेवियर इन डिफरेंट मीडियम। अगर हम अलग अलग माध्यम के अंदर इसको हम देखें तो ज्विटर आयन को अगर हम एसिडिक मीडियम के अंदर लेते हैं तो एसिडिक मीडियम के अंदर क्या होता है, ये NH3 प्लस जो है वो प्रोटॉन देगा, NH2 में बदल जाएगा। तो ज्विटर आयन यहाँ पर स्ट्रांगली एसिड की तरह काम कर रहा है और वो उसका काउंटर पार्ट नेगेटिव आयन जो बना रहा है वो वीक बेस है, और OH माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और पानी जो बन रहा है वो वीक एसिड है। इसी तरीके से अगर हम इसका बेसिक मीडियम के अंदर बिहेवियर देखें तो बेसिक मीडियम के अंदर OH जो है वो यहाँ पर होगा, और COOH जो है वो इसका बेसिक ग्रुप जो है वो कहलाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग और बेसिक मीडियम के अंदर हम इस तरीके से pH को सेट करें कि जो कैटायन बन रहा है या एनायन बन रहा है वो ज्विटर आयन से, आप देखें ज्विटर आयन एक फर्स्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, बेसिक मीडियम में ये NH2 में कन्वर्ट हो रहा है जो एक एनायन है। जब बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन आगे से पीछे जा रही है तो थर्ड जो है वो फर्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है, फर्स्ट जो है वो सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से अगर माध्यम अम्लीय रखा जाता है तो सेकंड जो है वो फर्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है और फर्स्ट जो हो रहा है वो थर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये इक्विलिब्रियम इसमें यहाँ पर है और हम इस इक्विलिब्रियम का स्पेक्ट्रा लें तो यहाँ पर फ्री COH ग्रुप ऑब्जर्व होगा कंपाउंड थर्ड में, और सेकंड कंपाउंड में फ्री NH2 ग्रुप जो है वो ऑब्जर्व होगा। और इसका हम केमिकल एविडेंस भी ले सकते हैं, जैसे थर्ड कंपाउंड का अगर हम इथाइल अल्कोहल और अम्ल के साथ क्रिया करें तो इसमें एस्टरिफिकेशन होगा। सेकंड का अगर हम करें HCl के साथ रिएक्शन तो इसमें सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से इस कंपाउंड में एक कैटायन स्टेट में भी रहता है ज्विटर आयन, जिसमें NH3 पर पॉजिटिव चार्ज होता है और COOH के रूप में रहता है, और दूसरी इसके अंदर ये CO माइनस के रूप में रहता है और NH2 माइनस के रूप में, NH2 जो है वो न्यूट्रल अवस्था में रहता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करें तो एक सर्टेन pH के ऊपर थर्ड जो कैटायन है वो सेकंड के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और सेकंड जो है वो थर्ड के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसमें कोई रिएक्शन इधर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी। तो ऐसा अगर हम माध्यम सेट कर लें जिस पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो तो उसको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में नंबर ऑफ कैटाइन की संख्या नंबर ऑफ एनाइन की संख्या के बराबर हो जाती है। कोई इक्विलिब्रियम में कैटाइन जो है वो एनाइन में नहीं बदलता, एनाइन कैटाइन में नहीं बदलता, और इसको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो का मतलब होता है समान,
यानी कैटाइन की संख्या जो है वो एनाइन की संख्या के समान हो जाती है। तो जो ज्विटर आयन है वो कैटाइन के रूप में और एनाइन के रूप में इक्विलिब्रियम के अंदर यहाँ पर रह सकता है और बैलेंस ये हो जाता है, इसलिए इसको हम एम्फोलाइट भी कहते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।